Good morning, student. I am Ashishal, your chemistry PGT. Today I will discuss remaining subtopics of Unit 4 Chemical Kinetics Class 12. First of all, I will discuss overall rate of reaction and instantaneous rate of reaction. जैसा कि हम आप लोगों को बता दें कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन उससे रिमेंबर मतलब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको आप लोगों को रिमेंबर करना पड़ेगा। तो रिमेंबरिंग पॉइंट क्या है? रिमेंबरिंग पॉइंट क्या है आपका? फर्स्ट लेटर कंसीडर ऑफ केमिकल रिएक्शन reaction, let us consider a general chemical reaction, small a capital A plus small b capital B gives out small c capital C plus small d capital D, where small a, small b, small c and small d are stoichiometric coefficient of reactant A, B and product C, D respectively. तो ओवरऑल ऑल रेट इज इक्वल टू -1 अपॉन स्मॉल ए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू -1 अपॉन स्मॉल बी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू +1 upon small p delta c upon delta t is equal to +1 upon small d delta d upon delta t, and instantaneous rate and instantaneous rate equal to -1 upon small a d by dt of reactant A and is equal to -1 upon b d by dt of molar concentration of reactant B equal to +1 upon c d by dt of molar concentration of product C is equal to +1 upon small d d by dt of molar concentration of product capital B. ये आपका हो गया रिमेंबरिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। Factor affecting the rate of reaction are factor affecting the rate of reaction. There are many factors which affect the rate of reaction. Mainly some of them are given below. First, concentration of reactant. Second, temperature. Third, pressure of the gas of the gas. Fourth, surface area of the reactant, area of the reactants, and last, radiation and catalyst. ठीक है, तो ये आपके 5 फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं,
अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आपका है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड आपका है टेम्परेचर, थर्ड प्रेशर ऑफ द गैस, फोर्थ सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट एंड फिफ्थ जो है रेडिएशन एंड कैटलिस्ट है। तो हम बात करेंगे फर्स्ट डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन। फर्स्ट हम बात करेंगे डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन की बात करते हैं। डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन, डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन। तो इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है इसके विषय में। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कराए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, according to law of mass action, let us consider a general chemical reaction small a capital A plus small t capital B gives out small t capital C plus small d capital D, where small a, small b, small c and small d are stoichiometric coefficient of reactant and products, and capital A, capital B are reactants and capital C and capital D are products. Now expression for this reaction, that expression for this reaction is that is directly proportional to concentration of reactant A whole raised to power x into concentration of reactant, molar concentration of reactant whole raised to power y, where x and y may or may not be equal to stoichiometric coefficient of stoichiometric coefficient A and B of reactant A and capital B respectively equally. That equal to K concentration of molar concentration of reactant A whole raised to power x into molar concentration of reactant B whole raised to power y. This expression is known as rate law. इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं माइनस डी बाई डी टी ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए होल राइट टू पावर एक्स इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी होल राइट टू पावर वाई, वेयर this expression is known
as differential rate equation, differential rate equation, where k is proportionality constant, where k is proportionality constant called rate constant or velocity constant or specific rate of reaction or specific rate of reaction. Now rate constant is defined as the specific rate of reaction. Now rate constant is defined as the specific rate of reaction when concentration of reactant is taken unit, that is 1. Then rate is equal to K if concentration of reactant A equal to molar concentration of reactant B equal to 1. Now we will find the unit of rate constant K. Now we will find unit of rate constant K. तो बोल रहा है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए स्पेस ऑफ ए जनरल केमिकल रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के और स्पेसिफिक rate of nth order chemical reaction is K is equal to 1 upon, means unit of rate constant K is equal to 1 upon unit of time into 1 upon concentration whole raised to power n minus 1. तो ये तो बात हुआ कि यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करना है उसमें हम क्या करते हैं 1 अपॉन टाइम की यूनिट निकाल लेते हैं. उसके बाद 1 अपॉन करके कंसंट्रेशन की यूनिट निकाल लेते हैं. उसके पावर हमें n-1 लिख देते हैं. तो हमको इस तरह nth ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का हमको यूनिट फाइंड हो जाता है. जैसे हमको फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का अगर यूनिट फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम क्या n का वैल्यू वहां पे 1 रखते हैं. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन के पावर क्या हो जाता है 0. तो वहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा यूनिट होता है
वो टाइम की यूनिट मीन सेकेंड इनवर्स, 1 टाइम की यूनिट मीन सेकेंड इनवर्स आ जाता है। उसी तरह अगर हमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 1 टाइम की यूनिट ऐड करते हैं इंटू 1 कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, क्योंकि हम कंसंट्रेशन की जो यूनिट जानते हैं वो क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। तो इस तरह हम क्या करते हैं उसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का n का वैल्यू जीरो रख देते हैं तो हमको आ जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होता है। तो हम यहाँ पे भी बता सकते हैं या इससे आगे हमको यह चीज बताना ही है, हम कहते हैं क्या करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या जीरो ऑर्डर रिएक्शन या nth ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट फाइंड करते हैं। जैसे अगर हमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हमको यूनिट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K इक्वल टू 1 टाइम की यूनिट जैसा कि आप लोग जानते हैं सेकेंड होता है इनटू 1 कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर राइट किया और n का वैल्यू यहाँ पे जीरो राइट किया, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 0 - 1 इक्वल टू -1। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां से हमको क्या मिल जाती है, जो यूनिट मिलती है सेकेंड इनवर्स मोल और उसके बाद आपका क्या है लीटर इनवर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह कि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स फाइंड हो जाता है। और उसी तरह हमको अगर हम ये तो फर्स्ट बात क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अगर हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हमको यूनिट फाइंड करना है तो उस कंडीशन में क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ टाइम की यूनिट क्या होता है सेकेंड, और सेकेंड आप राइट करने के बाद आप क्या कर देते हैं सेकेंड राइट किया सेकेंड इनटू यूनिट ऑफ 1 मोल कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर होता है। और उसके बाद दूसरा क्या हो जाता है, यहाँ पे हम 1 - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट 0 हो गया और किसी भी नंबर से वेरिएबल का एक्सपोनेंट अगर हम 0 राइट करते हैं तो उस कंडीशन में उसका वैल्यू 1 आता है, तो ये 1 टोटली 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1। तो इसको लिख लेते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट होता है वो अलग है सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह हम यूनिट कैलकुलेट करते हैं। अब हमको अगर हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो उस कंडीशन में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको देखते हैं। फर्स्ट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर यूनिट फाइंड करना है रेट कांस्टेंट का तो हम लिखते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ टाइम की यूनिट कितना होता है बेटा सेकेंड होता है, 1 सेकेंड लिख लेते हैं इनटू 1 कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है बेटा, मोल पर लीटर ऐड किया और उसके होल पावर क्या है n-2 और n-1 है, तो n का वैल्यू मतलब ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन सेकंड है तो 2 लिखेंगे, 2 - 1 इक्वल टू 1। तो इस तरह हमको मिल जाता है, ये जब ऊपर वैल्यू डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो चेंज होता है, सेकंड इनवर्स हो गया और ये मोल जब है आपका मोल इनवर्स हो गया और उसके बाद लीटर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो मोल इनवर्स और इसके बाद लीटर, इसको हम इस तरह लिखते हैं लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस तरह हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन या हाफ ऑर्डर रिएक्शन जिसका भी हमको कैलकुलेट करना होता है वहां पे हम इसमें n की जगह पे उसका वैल्यू ऑर्डर राइट करते हैं और टाइम की यूनिट मालूम है, कंसंट्रेशन की यूनिट जैसा कि आपको मैं बताया मोल पर लीटर होता है, इस तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि यूनिट कैसे रेट ऑफ कांस्टेंट की निकालते हैं फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर में n का वैल्यू पुट कर दो 0 1 2 3 या हाफ ऑर्डर रिएक्शन जो भी है आप वहां पे n का वैल्यू पुट करके आप वहां से यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का, उसके विषय में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट के मतलब आपके रेट कांस्टेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टर क्या होते हैं। तो मतलब अगर रेट हमारा
रेट कांस्टेंट जो है का वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन में उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू है हमारा क्या है पार्टिकुलर होता है पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, या तीसरा हम यह भी बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है सेम रिएक्शन के लिए वो क्या होता है चेंज होता है, जब टेम्परेचर हमारा चेंज होता है तो वो भी चेंज हो जाता है। फिर अगला जो हमारा लास्ट है उसमें कहना द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट जो होता है हमारा क्या होता है कि डज नॉट चेंज विथ या डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम बात करेंगे जो हमारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रेट कांस्टेंट के उसके निकलेंगे। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट आर गिवन। फर्स्ट नेम इज आपका जो है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट tan k, रेट कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट k इन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट sorry the greater value of rate constant इस तरह बात करते हैं greater the value of rate constant tan k faster is the reaction कहने का मतलब अगर हमारा जो वैल्यू क्या होता है रिएक्शन का अगर कराती रेट कांस्टेंट का वैल्यू अगर हमारा ग्रेटर होगा तो उस कंडीशन में जो केमिकल रिएक्शन होगा बहुत ही फास्ट होगा, और अगर हमारा ये लो होगा रेट कांस्टेंट की वैल्यू लो होगा तो उस कंडीशन में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द केमिकल रिएक्शन। सेकंड करा ईच केमिकल रिएक्शन has a particular rate constant time, particular rate constant at a particular temperature, at a particular temperature। कहना है कि each chemical reaction has a particular value of rate constant at a particular temperature। Third, the value of rate constant of a same for a same reaction